ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਟਿ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ, ਸੂਰੇ ਸਈ ਅੱਗੇ ਆਖੀਏ, ਪਾਵੇ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਮਾਣੋ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮਹਿ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣੋ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਏ ਮਰੇ ਪਰਵਾਣੋ, ਪਰਮ ਸਨਮਾਨੀ ਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਦਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਰਵਤਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਨੇਰੀ ਨਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਜ਼ੰਦ ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਨਗਰ ਕੰਗਣਾ ਵੇੜ ਤਥਾ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ।
बहुत ही प्यार वाले विद्वान ਗਿਆਨੀ ਗੰਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਢਾਡੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਡੀ ਹਨ ਗਿਆਨੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਲਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿਰਤੀ ਫਿਰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ, ਲਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਔਰ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ 42 ਸਾਲ ਰਹੇ। 42 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਨ 1666 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1708 ਤੱਕ 42 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅੱਤ ਦੇ ਵਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਵਚਾਰੀ ਹਨ, ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵਿਦਵਾਨ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਆਰੀਆ। ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਾਂ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਉਰਦੂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੁਭਾਨ ਉਮਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਆਰੀਆ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਮੈਕਾਲਿਫ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਵਫਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ,
ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਚੀ ਫਸੀਲ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਵਸ हिंद में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए, जहां कटाए बाप ने बच्चे खुदा के लिए। ये गल सिख ने नहीं लिखी, एक मुसलमान ने लिखी है। साध संगत वड्याई दा सुभाव तां आउंदा है जे दूजे धर्मां मजहबां दे लोग भी वड्याई करन। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई विच हकीम योगी अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਓ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਓ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਲ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੱਡਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 42 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋਗੇ उदन हर बंदा ये गल कहेगा वाह गुरु गोबिंद सिंह तेरा दुनिया में कोई सन्नी नहीं हो सकता। वो मुसलमान हकीम योगी अल्लाह यार खान लिखदा है, कहंदा इंसाफ करे जीमे जमाना तो जकी है। दुनिया दे लोग जमाने दे लोग दिलों साफ होकर इंसाफ कर, इंसाफ करे जीमे जमाना तो जकी है। कह देंगे कि गुरु गोबिंद का सन्नी ही नहीं है, करतार की सौगंध नानक की कसम है, जितनी भी करूं तारीफ गुरु गोबिंद की वो कम है। हर जंद मेरे हाथों में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है। अगली गल उन्हें बड़ी प्यारी लिखी, कहंदा उल्फत के जे जज्बे कभी देखे नहीं हमने। जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज करके विखा गए, वो कहंदा कदे देखिया नहीं दुनिया में इस तरह होया हो। देखना तो दूर की गल, कदे कन्ना नाल सुनिया भी नहीं कि दुनिया च इदां वापरिया हो। कुछ गल्लां अखां नाल बंदा जीवन च वेखदा है, कुछ गल्लां बजुर्गां कोलों सुनिया जांदियां कि भाई ऐ सदी वे सुनिया इस तरह होया। हकीम जोगी अल्लाह यार खान लिखदा देखना तो दूर की गल, कदे सदियां गुजर गईयां सुनिया भी नहीं कन्ना नाल कि जो गुरु गोबिंद सिंह कर गया इदां दा कोई धरती ते करके गया हो। उल्फत के जे जज्बे कभी देखे नहीं हमने, देखना एक बात कभी सुने भी नहीं हमने। एक आंख से क्या बुलबुला बहर को देखे, साहिल को मंझधार को या लहर को देखे। हकीम योगी अल्लाह यार खान गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई विच इन्नी सिफत कर। साध संगत एक बेनती समझो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई कोई दिलों साफ होकर इंसाफ करे, क्योंकि ज्यादातर धार्मिक लोगों के अंदर ईर्खा पाई जाती है। हिंदुस्तान नूं सब तो वड्डा खतरा कट्टर धार्मिक लोगों तो है। इन्ना जानी ते माली नुकसान आम बंदियां करके नहीं, जिन्ना धार्मिक पक्ष रखण बंदियां करके होया। साध संगत इत्थे धर्म के नाम ते दंगे हो जाते, इत्थे धर्म के नाम मजहब के नाम उत्ते लखां लोगों की हत्या हो जाती है। पर एक चीज का सिखो तुहानू मान होना चाहिए, एक चीज का अपने मन के अंदर मान रखो। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने संकल्प और सिद्धांत दिता है, गुरु का सिख वो सिद्धांत ते पक्का रहिंदा। वो सिद्धांत पता की है, साखा तुसीं सुनिया, मैं सिर्फ विचों विचों बेनती करनी। श्री आनंदपुर साहिब नूं 8 महीने घेरा पिया रहा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने परिवार ते सिखां समेत उस किले विच रहे। एक वक्त आउंदा है जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज उहदे परिवार ते सिखां नूं भुख ते दुख चुका नहीं सकी, कड़ाके दी ठंड ते दुख ईन नहीं मना सकी। जिदन मुगलिया हुकूमत ते पहाड़ी राजियां ने वेख्या गुरु गोबिंद सिंह महाराज झुकदे नहीं,
किला आनंदपुर साहिब छड्डण लई तैयार नहीं। दुख ते भुख गुरु दा कुछ विगाड़ नहीं सकदी, क्योंकि वो गुरु जिन्हों तुसीं दुख ते भुख नाल घेरा पा के झुकाना चाहुंदे हो, वो गुरु सिखां नूं रोज पढ़ाउंदा है। जे सुख दे तां तुझे अराधी, दुख भी तुझे तिहाई, जे भुख दे तां इत ही राजा, दुख वे सुख मनाई। जेड़े गुरु नूं तुसीं दुख ते भुख दे के किले विच बंद करके झुकाना चाहुंदे हो, उस गुरु नूं झुका नहीं सकोगे। क्यों? ਉਹਦੇ घर विच रोज ये शब्द पढ़िया जाता है कि हे अकाल पुरख वाहिगुरु, दुख होवे सुख होवे सिख खुशी विच पढ़ते ने, ऐ पी दात तेरी दातार। साध संगत जदों पहाड़ियां ते मुगलिया हुकूमत ने वेख्या नहीं झुकते, फिर उन्हां धार्मिक पक्ष तो पैंतरा खेलिया। इतिहासकारां ने लिखिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं किला आनंदगढ़ दे अंदर एक पाक कुरान शरीफ का ग्रंथ घल्लिया गया, जो मुसलमानों की पाक कुरान है। उन्होंने कसम चुक के कहा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज सानू कुरान की कसम है, तुसी आनंदपुर साहिब छड्ड दिओ, साडा तुहाडे नाल कोई वैर नहीं। आनंदपुर साहिब छड्ड दिओ, असीं तुहानू कुछ नहीं कवांगे, साडा तुहाडा बैर झगड़ा खत्म। जे तुसी आनंदपुर साहिब छड्ड दिओ, असीं कुरान की कसम खाने। फिर पहाड़ी राजे हिंदू सन, उन्हां आटे दीयां गूंगां बना के घल्लियां, गीता दी पोथी नाल घल्ली, सानू गीता दी कसम है, हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक बार किला आनंदगढ़ छड्ड दिओ, साडा तुहाडा कोई वैर ते कोई झगड़ा नहीं। साध संगत हुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आनंदपुर साहिब दे किले विच जुड़े हुए सिखां नूं इकट्ठियां कीता। वो कसमां दी चिट्ठी और कुरान शरीफ और गीता दा ग्रंथ विखाया, नाल एक गल कही, मैनू तुरकां उत्ते रत्ता भी विश्वास नहीं, मैनू ये तुरकन्ना फौज दे वादियां कसमां दा कोई विश्वास नहीं, मैनू पहाड़ी राजियां दियां खादियां हुईयां सौहां दा कोई भरोसा नहीं। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, कहंदे फिर भी प्यारे दया सिंह आपां आनंदपुर साहिब जरूर छड्ड के जावांगे, फिर भी किला आनंदगढ़ खाली करन दी तैयारी करो। सिखां ने सवाल किया, महाराज एक पासे कहंदे हो तुरकां ते कोई विश्वास नहीं, एक पासे कहंदे हो पहाड़ियां दियां खादियां कसमां ते भरोसा नहीं, महाराज दूजे पासे कहंदे हो किला छड्डण दी तैयारी करो। महाराज जदों कसमां ते विश्वास ही नहीं, आपां किला खाली क्यों करिए? जदों उन्हां दियां कसमां ते तुहानूं भरोसा नहीं, फिर आपां किला क्यों छड्ड रहे? 10वें पातशाह ने वचन कह दया सिंह हुण गल धर्म दी आ गई है, गल उन्हां दी तुरकां दी कसम ते पहाड़ियां दी सौं दी नहीं, गल उन्हां दे धार्मिक ग्रंथ दी आ गई। जे अज उन्हां दी ग्रंथ कसम उत्ते विश्वास करके आपां किला ना छड्डिया, ये मुसलमानां दे धार्मिक ग्रंथ कराउण दी तौहीन है, ये गीता दी बेअदबी है। असीं भुल के भी किसी ग्रंथ दी बेअदबी नहीं कर सकते। किसी ने गीता दी सौं चुकी है, आपां उत्ते विश्वास ना करिए, फिर गीता दी नरादरी है। किसी ने कुरान दी कसम खाधी है, आपां विश्वास करके ना कर दईए कि जी तुहाडे ते विश्वास नहीं। पातशाह बोले गल तुरकां दी बेविश्वासी दी नहीं, गल ते पाक ग्रंथ कुरान शरीफ दी कसम दी है। अज किला ना छड्डिया, इस कुरान दी तौहीन हो जाएगी। महाराज फिर कहणगे ग्रंथां दा सन्मान करना, ये गल कल्ली गुरु गोबिंद सिंह महाराज दियां ने नहीं, पहला आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच आई है, जिथे हजूर कहणगे वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। भाई किसी का ग्रंथ वेद कतेब झूठे नहीं, झूठा वह है जिहड़ा उन्हां ग्रंथां दी विचार नहीं करदा, जिहड़ा उहदी विचारधारा उत्ते नहीं चलदा, वह बंदा झूठा है। किसी का धार्मिक ग्रंथ झूठा नहीं। साध संगत किला आनंदपुर साहिब छड्डण दा इक्को ही कारण है, कुरान शरीफ का अदब और दूजा हिंदुआं दी गीता का सत्कार। ग्रंथां का अदब करदे पातशाह ने किला आनंदगढ़ साहिब छड्डिया। साध संगत ये संकल्प और सिद्धांत गुरु दा है, और गुरु दे सिख भी इहदे उत्ते पाबंद रहिंदे। मैं कई बार दरबार साहिब तो लाइव ये बेनती कही, सैकड़े नहीं हजारां बार दूजे धर्मां दे लोकां ईरखा करन वालियां ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी करन दी कोशिश की। ईरखा वालियां ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दीयां पोथियां दे पन्ने पाड़े ने। ईरखा करन वालियां ने जान बुझ के गुटकियां दे पन्ने पाड़ के नालियां च खिलार दिते।
पर बदले विच किसे एक भी सिख ने साध संगत कल्ले पंजाब जां भारत विच नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये हिस्टरी कट के वेख लियो, एक भी सिख उत्ते कोई FRI दर्ज नहीं कि किसी सिख ने बदला लैण वास्ते किसी दे धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी की हो। सिख कदे बदला लैण लई किसी दे ग्रंथ की बेअदबी नहीं करे, ना किसी दे धार्मिक स्थान की बेअदबी करदा है। हाँ, बेअदबी करन वालियां तो बदला जरूर लिया, वो भावें बदला लैके जेलों में सिख बैठे ने, पर किसी दे ग्रंथ की तौहीन नहीं की, क्योंकि सिख गुरु दे दिते सिद्धांत ते चलदे। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। इत्थे ही वस नहीं, सब तो नखिद साध संगत एक बंदे ने पंजाब विच कोशिश की, पहाड़ियां च रहिंदा सी, ओहदा नाम बाबा प्यारा पनिहारा वाला। उन्हें गुरु ग्रंथ साहब दे तुल एक बहुत बड़ा बयान दे के कहा, सिखां दा गुरु गुरु ग्रंथ साहब 1430 अंग ने, मैं एक ग्रंथ बनाया वो 2860 अंग है। उन्हें साध संगत बड़ा बड़ा ग्रंथ तैयार किया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ 1430 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1400 ਨਹੀਂ 2860 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1400-1500 ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹ 2860 ਅੰਗ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੱਜਣੋਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਐਲਬਮ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਔਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਓ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜੇ 3.5-4 ਮੀਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਗਰ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਈ, ਦੂਜੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁੰਦ ਮੀਂਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਿੱਖੋ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਲਏ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵਕਤ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਨੇਮ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਰਕੰਨਾ ਫੌਜ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਵਿਛੜਦਾ। पर साथ संगत, पातशाह ने कह देता उस वक्त जपजी का जाप करना जरूर था। गुरु के सिंगों, उस वक्त जपजी पढ़नी अत्यंत जरूरी सी। सानू पूरने पाके देने सी। सिखो तुहाडे घर विच कोई भी दुख होवे पर गुरु दी बाणी ना छड्डिओ। जिहड़ा सिख बाणी तो दूर चला जाएगा ओदे जीवन में दुख होर वध सकदे ने। गुरु दी बाणी नाल जुड़िया रही, जा तैनू दुनिया दे दुखां दी ताव कदे सुका नहीं सकेगी। जपजी नाल जुड़ के रही। उस तो बाद जाप साहब दे अखीर विच गुरु ने कहा, सिखा जपजी नाल जुड़िया रही, जा तेरे नाल वादा होए दुकालंग प्रनासी दयालंग सरूपे सदा अंग संगे अपंगंग बेपुते। जपजी साहब सिख दे अंदर सुरूर भरदा है। उस वक्त जपजी का जाप करना जरूर था।
सिंगों के मन में जपजी का भरना सरूर था। जपजी साहब की बाणी ने सिखां दे अंदर उस कौम तो मर मिटन का सरूर भर दिता। खैर कलगीधर पातशाह चमकौर पहुंचते, जिस दम चमकौर में हुए सिंगों के उतारे, चुलाए हुए शेर थे गैंज के मारे, हर सिख दियां अखां में क्रोध ते गुस्सा आ रहा सी। दुश्मन ने धोखा कीता, साडा परिवार गुरु दा विछड़ गया, किन्ने सिख सरसा दी भेंट शहीद हो गए, गुरु दे प्यारे सिख बाबा जीवन सिंह मर गए, सरसा नदी दे कंढे जंग में शहादत दा जाम पी गए। ये सब कुछ सोच के सिंघां नूं गुस्सा आ रहा सी। 10वें पातशाह ने कोल होके कहा, सिखो हुण गजब का वक्त नहीं, भाव हुण गुस्सा करन दा वक्त नहीं, ये खुदा अल्लाह ताला करीम बंद रहीम दा हुक्म है। इस धरती उत्ते आपां पहुंच गए हैं जिथे आके बहुत वड्डा साका वरतना है। ये वो धरती है जिहदे बारे में कई बार कहा, श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा ये वो धरती है जिथे आना जरूरी सी, ये वो धरती है जिथे मेरे पुत्तां तो प्यारे सिखां ने शहादत का जाम पीड़ा। कलगीधर पातशाह रात चमकौर की गढ़ी विच रहे, सवेरे दिन चढ़दा है, दुश्मन की 10 लाख फौज ने घेरा पाया, घमसान की जंग मची। इतिहास कहंदा है श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर गढ़ी की जंग तो पहली जिहड़ी रात आ ठंडी रात गुजरी है, ओदा हवाला हकीम जोगी अल्लाह यार खान ने लिखिया। वो कहंदा रात पै चुकी सी, बुद्धि चंद ने रुखा मिसा प्रशादा लिया के गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते पातशाह दे 45 सिखां नूं छकाया। जिन्ने पातशाह दे नाल सिख सन उन्हां नूं भोजन प्रशादा छका दिता, रुखा मिसा सब ने छके। कलगीधर पातशाह नूं प्यारे दया सिंह कहंदे ने, महाराज तुसीं भी छक लो। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने प्रशादा ना छकिया। बुद्धि चंद नूं कहा, बुद्धि चंद तेरी सेवा परवान है, अज तक लोग तेरी गढ़ी नूं कच्ची हवेली कहंदे रहे ने, अज तो बाद गढ़ी कच्ची नहीं रहेगी, इत्थे पक्कियां दे पैर पै गए ने, रहिंदी दुनिया तक तेरी गढ़ी पुजी जाएगी। साध संगत जिथे पक्कियां दे पैर पै जाण वो धरती सचमुच पुजी जाती। वो धरती ते उस गुरु दे पैर पै ने जिन्हों कदे भाई गुरदास साहब कहंदे ने, जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थपन सो। गुरु नानक साहब दी 10वीं जोत श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बुद्धि चंद की सेवा प्रवान कर ली। रात पई, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस रात सुते नहीं। वो मुसलमान विद्वान लिखते हैं, जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्र खुदा में, खेमे से बाहर निकल आए सरकार हवा में। अद्धी रात हुई, सब गुरु दे सिख थके हुए सन, दुश्मन नाल जूझ के शरीर टुट चुका सी। आराम वास्ते जिथे किसी नूं कंध नाल जगह मिली सौ गए, कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछाकर, कुछ लगे देने पहरा तलवार उठाकर। गोबिंद भी शाबाज हुए खैमे में जाकर। कुछ सिख उत्थे आराम करन सौ गए। किसी ने घोड़ियां दी काठी दा सराहना बनाया, किसी ने दमल्ले नूं सराहना बनाया। अद्धी को रात हुई, गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने खैमे चों पड़दे चों बाहर आ गए। सिखां ने पातशाह वास्ते घोड़ियां ते पाए हुए कपड़ियां दा आसन लाया सी। एक कपड़ा हवा ना पवे तान दिता। पातशाह उस खैमे में जाके बैठ गए। गोबिंद भी शाबाज हुए, खैमे में जाकर देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन झुकाकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज सुते नहीं। इन्नी ठंडी रात विच भी चौंकड़ा मार बैठे ने ते चमकौर दी कच्ची गड़ी विच बह के की करदे ने, वाहिगुरु 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 है मुख से निकलता है, तू ही तू मुख से निकलता। जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्र खुदा में, खेमे से बाहर निकला सरकार हवा में। पातशाह बाहर ठंडी हवा च निकले, वेख्या अपने सिख ते पुत सुते पे। सब वल पातशाह ने कल्ले कल्ले दा मुंह वेख्या। कई सिखां दे पैर ठंड नाल सुੱਜ चुके सन, कईयां दे बाहां ते लगे हुए फट लहू उसे तरह सुक्या पिया सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अज आखिरी वार उन्हां कई सिखां दा चेहरा वेख्या जिन्हां ने कल मैदाने जंग अंदर शहादत दा जाम पीना सी। पातशाह नूं पता सी सब कुछ कि दिन चढ़ना है, ये सिख कल नहीं रहणगे। कल दे सूरज डुबण तक मेरे अपने 2 पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह ते जुझार सिंह भी नहीं रहणगे।
श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज हुण सब सिखां दे कोल कल्ले कल्ले कोल जा रहे सन। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज खेमे से बाहर निकला, सरकार हवा में कदमों से टहलते थे, दिल था दुआ में, करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर रब नाल गल्लां कर दे, ऐ दाता कल जाऊंगा मैं चमकौर से सुरखरू होकर। दो बचे ने, कल मैं ये भी वार के कलियां तुर जाने। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों फिर सब सिखां वल गए ना, साफे कभी सिंगों के उठाते थे जमीन से। बड़ी वड्डी गल, जिन्हां दे सीस सुत्तियां पिया सिर नंगे हो गए केस, कलगीधर पातशाह ने कईयां दे साफे चुके, उन्हां दे केस ढक दिते। एक बेनती मैं अदब सहित करांगा, साध संगत जिन्हां ने खंडे वट्टे दी पौल अमृत छके, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी बख्शिश दे पात्र हो। तुहाडे केसां विच पंज प्यारियां ने कलगीधर पातशाह दा अमृत पाया। अमृतधारी सिख नूं हुक्म है कदे नंगे सिर घर तो बाहर नहीं जे निकलेगा। जदों केस अपने हरे करदे ना धो के सुकाउंदे, साध संगत वो पर्दे विच बह के सुकाउंदे, बाहर गलियां विच नहीं। अपने केसां नूं कज के रखदा, ये गुरु दा हुक्म है। अमृतधारी सिख नंगे सिर कदे वाशरूम नहीं जाएगा। अमृतधारी सिख नंगे सिर कदे भोजन प्रशादा नहीं छकेगा, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने केसां नूं अपनी मोहर दसे। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सुत्ते पे सिखां दे दमाले खुल गए। पातशाह ने उन्होंने केस कज दिते। पातशाह ने कईयां दा मस्तक चुम्या, कईयां दे हत्थां ते फट लगे लोह जम्मिया, वो हथ चुमे। कईयां दे पैरां वल घुम के गए, वाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज तेरे वर्गा गुरु केड़ा होने। कई सिखां दे पैर भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने चुम लए। नमस्कार कीती, ओ मेरे पुत्तां तो प्यारिओ, तुहाडे भी घर विच पुत्त धी उडीकदे होणगे, तुहाडीआं भी मावां ते घर दीआं धर्म पत्नियां बच्चे उडीकदे होणगे। तुहाडा मेरे नाल की रिश्ता है? तुसी मेरे प्यार विच वज्जे मेरे सिख हो, मेरी खातर दुख ते भुख कट्टी है, मेरी खातर कल नूं शहीद होना। कलगीधर पातशाह ने सब सिखां दे पैरां 'च नमस्कार कीता। इदां दा गुरु किसे नूं नहीं मिलेगा जिहड़ा सिखां नूं भी नमस्कार करदा है। वो अल्लाह यार खान जोगी लिखदा है, साफे कभी सिंगों के उठाते थे जमी से, खाब कभी ली तो चढ़ी जमी से, कईयां दी खाक चुक के मस्तक नूं लाई। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कभी हलकूम चूमा, कभी दहन चूमने बैठे, जब पैयंती आए तो चरण चूमने बैठे। कईयां दे चरण चूमे पातशाह ने। पुत्तां तो प्यारिओ कल तुसी शहीद होने। कलगीधर पातशाह रात गुजर गई, नजर पई गेट उत्ते गड़ी दे दरवाजे ते एक सिख पहरा दिंदा। ओदा नाम इतिहास विच आया भाई मदन सिंह। ओनू कहा बेटा तुम ही 2 घड़ियां अख ला के आराम कर ले, कल जंग विच जुझणे, लिया वर्षा मैनू दे, तेरी जगह उत्ते पहरा मैं दिना। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अमृत वेले दे पहले पैर पातशाह ने पूरा एक पैर जाग के पहरा दिता। खैर अगले दिन चढ़िया, कमसान दी जंग मची, 5-5 करके सिख मदन ने जंग में शहीद होंदे रहे। 5 जणियां ने 5-5 नूं मौत दे घाट उतारिया। जदों दुश्मन दी फौज नूं बड्ढा लग गया, कलगीधर पातशाह दशमेश गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे पुत्र बाबा अजीत सिंह मदन ने जंग में जांदे ने। सैकड़े नहीं हजारां नूं मौत दे घाट उतार के शहादत दा जाम पी जाते। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपनियां अखां नाल वेख रहे सन। साध संगत कोई पुत्तां दी खबर दुख दी कन्नां नाल भी सुन ले, वो बंदे दे शरीर विच जान नहीं जे रहिंदी। पुत्त दे मरण या एक्सीडेंट दी खबर कोई कन्नां नाल सुने, बंदे दा शरीर तुरनों आवाजार हो जांदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा कौन होने? कल्ला सुनिया नहीं, कलगियां वाले ने अखां नाल अपने पुत्त शहीद हुंदे वेखे ने। अजीत सिंह दे सीने विच बरशियां वजदियां वेखियां ने, अपने जुझार दे सीने विच तीर वजदे वेखे ने। दुश्मन ने रौला पाके कहा गुरु गोबिंद के फर्जंद हैं, इनको मार डालो। साध संगत मदन ने जंग विच किसी दे एक गोली बजी, ओनू मरण तो बाद दोबारा दुश्मन ने गोली नहीं जे मारी। किसी ने एक तीर वजया, ओदे मरण तो बाद दोबारा तीर नहीं जे मारे। किसी दे वर्षी बजी, ओदे शहीद होने तो बाद दोबारा ओदे वर्षी नहीं मारी।
पर गुरु गोबिंद सिंह दे फरजंद इतिहास कहंदा दुश्मन ने गुरु गोबिंद सिंह जी का पूरा गुस्सा उहदे पुत्रां ते कढिया। जदों साहिबजादा अजीत सिंह शहीद हो गए, धरती ते डिगण तो बाद सैकड़े दुश्मन बरशियां मार मार सीना बिंदे रहे। संजो आ लोहे दी संजो फट गई, पेट तो छाती तक उन्हां बरशियां मार के शरीर चाक कर दिता। फिर साहिबजादा बाबा जुझार सिंह 14 साल की उम्र है। तुसीं पुत्तां वाले बैठे हो, झात मारियो 14 साल का बच्चा किड्डा खुंदा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज अखां नाल वेख रहे सन, अजे मुछां फुट रही ने, दाढ़ी दे छोटे छोटे बाल फुटे ने, अजे बालपन दी अवस्था चों जवानी च पैर रखने। कलगीधर दशमेश पिता दा ओ लाडला फरजंद बाबा जुझार सिंह मदन जंग अंदर दुश्मन ने घेरा पा के मारे, पर बाबा जुझार सिंह ने सैकड़े पहला मौत के घाट उतारे। जिथे बाबा अजीत सिंह की लाश पई सी, इतिहासकार कहते ने बिल्कुल उतों 2 फुट अगां जाके दुश्मन ने घेरा पाया ते साहिबजादा जुझार सिंह नूं सुट लिया। बरशियां मार मार के सीना बिन दिता। पातशाह सब कुछ वेख रहे सन। गुरु का पूरा गुस्सा दुश्मन ने पुत्रां ते कढिया। इतिहास कहंदा अगली रात पई, अद्धी रात नूं 5 सिखां हुक्म करके कहा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज गड़ी छड्ड के चले जाओ, पंथ तुहानूं हुक्म दिंदा। महाराज तुसीं चले गए, साडे वर्गे सैकड़े हजारां होर पैदा कर दो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पंथ का हुक्म मन्निया। अद्धी रात नूं चमकौर दी गड़ी छड्डी। गड़ी छड्ड के तुरन लग्गिया पातशाह ने उच्ची आवाज विच कहा, पीरे हिंद में रवद। जिथे खलो के कहा ताड़ी मारी है, उत्थे अज गुरुद्वारा ताड़ी साहिब है। जदों पातशाह सूरवीर योद्धियां दे ओ शहादत दे मैदान विचों हजूर नंगे पैरी गुजर रहे सन, वे खौफ ते बेपरवाह होके कलगीधर पातशाह गुजर गए। मगर मगर प्यारे दया सिंह, मान सिंह, धर्म सिंह चले ने। प्यारे दया सिंह ने जदों वेख्या गुरु गोबिंद सिंह लंघ चले ने, अपने पुत्तां दीयां लाशां वल भी नहीं वेख्या। आवाज दे के दया सिंह दा दिल भर आया। इक्को गल कही, पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पिछां परत के वेख्या, दया सिंह दा गला भर आया। हजूर ने कहा, बोल दया सिंह, रुक क्यों गए? दया सिंह ने हाथ जोड़ के कहा, पातशाह लंघ ते इस तरह चले हो जिवें अखां नाल कुछ वेख्या ही ना होवे। महाराज तुहाडे दोवां पुत्रां दीयां लाशां पईयां ने, वेखो तां सही। गल तो लैके पेट तक तेरे जुझार सिंह ते अजीत सिंह दा सीना चाक कर दिता है। सैकड़े बरशियां मारियां ने। महाराज जांदियां जांदियां एक बार मूंह ते निहार जांदे, दोहां पुत्रां नूं प्यार ते दे जाओ। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, दया सिंह मेरे पुत्तां तो प्यारे सिख शहीदां दे शरीर पए ने, जे मैं पुत्तां नूं प्यार देण लग पिया, दुनिया कहेगी गुरु गोबिंद सिंह ने पुत्तां ते सिखां विच फर्क कीता। मैनूं सिख पुत्तां तो भी प्यारे ने। पातशाह जदों तुरन लगे, जिहड़ी गल दया सिंह ने कही वो किसी भी दुनिया दे प्यो दे दिल विच टक पा सकती सी। दया सिंह बोले, हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, तेरे पुत्रां उत्ते लाशां दा संस्कार करना संभव नहीं, पर पातशाह कफन ते पाया जा सकदा है। तू दीन दुनिया दा पातशाह है। 1.25 लख दे प्रशादी हाथी दी सवारी कीती है। 1.25 लख दी चंदन दी चौंकी ते बहिंदे सो। तेरे पुत्रां लई रेशमी कुर्तियां दीयां लाइनां लगियां सन। संगत कहंदी सी, पातशाह असीं तुहाडे पुत्रां लई पोशाक बना के लिआंदी है। महाराज वारी नहीं सी आउंदी, तेरे पुत्रां नूं रेशम दीयां पोशाकां, अज तेरे पुत्तां नूं 2 हथ कपड़ा कफन भी नसीब नहीं। हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, गरीब तो गरीब बंदा होवे दुनिया च, ओदी भी औलाद नूं कफन मिल जांदा है। प्यो दे रहिंदियां पुत मर जाए, प्यो नूं कफन पाउणा पैंदा है। महाराज मैं अपना दमाला खोल के दिन्ना, 2 टोटे करके एक बार शरीर मुंह ढक जाओ, कम से कम कफन पाउण वाला कम ते पातशाह रस्म निभा जाओ। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं दया सिंह हाथ जोड़ कहंदे, महाराज गरीब तो गरीब बंदा होवे, ओदी भी लाश नूं कफन मिल जांदा है। तू तां दीन दुनी दा पातशाह है, तेरे पुत्रां नूं कफन क्यों नहीं? महाराज मैं दमाला खोल के दिन्ने, दोवां दे शरीर उत्ते 2 टोटे करके कफन पा दे।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਦਿਲ ਤੇ ਟੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਕਫਨੋਂ ਬਗੈਰ ਦੱਸ ਕਿਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਫਨੋਂ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਫਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਫਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, शहीद की लाश कफन की मोहताज नहीं, क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है, वो मौत भी हयात है। 10वें पातशाह जदों इंज कह के तुरन लगे, दया सिंह बोले, महाराज मैं कफन पाने लिए पता क्यों कहा, सतगुरु तेरा पूरा गुस्सा दुश्मन ने तेरे लालां ते कढ़ दिता है। गल तो लैके पेट तक शरीर चों लहू वह तुरया, बरशियां मार मार के सीना पहाड़ दिता है। सवेरे दिन चढ़ेगा, इल्लां आउणगियां, पातशाह तेरे पुत्तां दा मास नोचणगियां, मैं ते तां कहने कपड़ा पा के ढक दिओ, कम से कम तेरे पुत्तां दियां लाशां ते इल्लां नहीं मास खाणगियां। 10वें पातशाह का कैसा हौसला होएगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, कहंदे दया सिंह मेरे पुत्तां दियां लाशां दा मास इल्लां नूं खा लैण दे, ओए जिन्ना मास नोच नोच के इल्लां आकाश विच उच्चा उड़नगियां, एक दिन इन्ने उच्चे मेरे पंथ दे केसरी निशान साहब झूलणगे। साध संगत अज एवें नहीं निशान साहब झूलदे, ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कुर्बानी करके, ये पातशाह दे फरजंदां दी लासानी कुर्बानी है, तां अज केसरी निशान 300 फुट उच्चे झूलदे ने। आ तुसीं वेखिआ साध संगत, कुंडली ते ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ उत्ते किवें अपने परिवार वाले वो किसान पंजाबी सिख डटे हुए ने, उत्थे रौला पिया केसरी निशान ना लाओ जी। क्यों? सरकार ते मीडिया ब्लेम दिंदा है, ये केसरी निशान खालिस्तान निशान साहब ना चलाओ, किसानां दा कल्ला झंडा लाओ। पर साध संगत ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शिश है, उस निशान विच बड़ी वड्डी ताकत है। वो निशान किसी बंदे का बनाया नहीं, वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कीती कुर्बानी का निशान साहब है। ते साध संगत उत्थे जिहड़े कहंदे सन निशान ना लाओ, अज जाके वेखो तुहाडे चों कई गए होणगे। असीं उत्थे रह के उत्थे 150 फुट निशान साहब खालसिया ने गब्बे कट दिते ने, कल्ला 150 फुट नहीं। एक मैं बड़ा वेख के हैरान होया, मैं उन्होंने पूछया, 250-300 फुट उच्चा टावर है, ये 300-400 फुट उच्चे जियो दे टावर उत्ते कौन चढ़े है? कहते जी बच्चे आ नौजवान हमला मार के हथों हथी चढ़ गए। 300-400 फुट उच्चे वो जियो दे टावर उत्ते भी निशान साहब ला देते। साध संगत ये गुरु की बख्शिश है, वो उत्थे धरती ते बैठे ने अज धरने ते, जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह की थपना है, एवें नहीं बैठे। इंज कौन बह सकता है? ये सच है, सानू थपना गुरु गोबिंद सिंह दी सीस तली ते रखना जानते हैं, तत्ती तवी ते बैठ के गीत गाइए, अरे हेठ भी जिंदगी माणते हैं। सीस गंज ते गड़ी चमकौर वाली सानू अज भी जुझना दसदे ने, ओए जाके पुछ लो कंध सरहंद दी तो बाल चिणे हुए किदां हसदे। साध संगत श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर की गड़ी तो अपने साहबजादियां दी लाशां कोलों बेपरवाह होकर लंघ गए। एक घटना घटी उत्थे, जदों महाराज चमकौर की गड़ी तो तुरे, वो सीधा रास्ता जी श्री माछीवाड़ा साहब नूं आउंदा है। तुहाडा इलाका है, तुसीं जांदे रहिंदे हो। उत्थों पातशाह चले, अद्धी रात तो चलदियां चलदियां सवेरे दिन चढ़िया, एक पिंड दे कोल आ गए। थोड़ी जी सूरज की लो लगी है, अजे भी धुंध ने आकाश नूं घेरिया होया है। पातशाह संघनी धुंध ते थोड़ी जी सूरज की लो विच उस पिंड दे लाग्यों गुजर रहे सन, झाड़ियां विचों लंघदे जा रहे सन। उस पिंड दे दो गुजर, एक दा नाम इतिहास विच आया अल्फू, एक दा नाम आया गम्मू। दोवां जणियां ने बग छड्डिया चरण वास्ते, पशुआं दा मੱਝਾਂ गावां दा बग छड्डिया। साध संगत एक गुजर दी नज़र पई, उन्हें वेख के कहा, ओए अल्फू ओ वेख, मैनू लगदा गुरु गोबिंद सिंह जा रहे हैं।
उन्हें कहा तेनों किवें लगदा है? कहने लगा मैं कल परसों दा सुनना रौला पे गुरु गोबिंद सिंह इधर चमकौर विच आ गए ने, लगदा है कल घमसान दी जंग होई है, होवे ना गुरु गोबिंद सिंह होणगे। जे आपां गुरु गोबिंद सिंह नूं पकड़ लईए, सरहंद दे नवाब नूं जाके दईए, आपां नूं डाढा नाम मिलेगा। दोवां लोभी गुजरां ने अपना बग छड़ दिता, डांगा पकड़ के गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं अग्गों घेर लिया। आवाज दे के कहंदे महाराज तुसीं गुरु गोबिंद सिंह हो? कलगीधर पातशाह ने बड़ी सहज और धीमी आवाज विच कहा, हाँ बई मैनू ही लोग गुरु गोबिंद सिंह कहंदे ने, दसो तुहानू की कम है? दोवां गुजरां ने हस के कहा महाराज तुसीं पकड़े गए हो, तुहानू पता है साडा ये लल पिंड रंगड़ गुजरां दा पिंड है, असीं तुहानू घेर लिया, हुणे रौला पावांगे, पिंड इकट्ठा करांगे, तुहानू पकड़ के सरहंद दे नवाब नूं दवांगे, इनाम लवांगे। पातशाह ने बड़े सहज विच गल कही। एक इत्थे नोट करियो साध संगत, एडी वड्डे साके तो बाद पातशाह दे अंदर दा कोई बल नहीं खो सकिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा हौसला कोई पस्त नहीं कर सकिया। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ये बचन कहे, ओ अल्फू ते गामू नूं कहंदे होए गुजरो तुहानू ते इनाम ही चाहिए ना, सरहंद दे नवाब तो भी लेना, इनाम मैं दे दिना, पर मेरा रस्ता ना रोको, मैं ते करते पुरख दी हुक्म दे रजा विच जा रहे हैं, मेरे रस्ते विच रुकावट ना पाओ, इनाम चाहिए। पातशाह ने खीसे विच हथ पाया। इतिहासकार लिखते ने एक सोने दी माला जिहड़ा सिमरना कदे किसी संगत ने भेंट कीता सी, प्यार विच पातशाह ने सांभिया होया सी, वो सोने दी माला सिमरना पातशाह ने गुजरां नूं दे दिता। लो अल्फू ते गामू इन्ना इनाम वजीर खान ने भी नहीं सी देनी, आ लो तुहाडियां पुश्तां रज के खाण गियां। पातशाह ने उस सोने दी माला दे दी। दोवां गुजरां ने सोने दी माला लई बड़े खुश होए, कहण लगे डाढा इनाम मिल गया, सोने दा सिमरना मिल गया। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सोने दी माला दे के अगां तुर पे, अजे 10 कदम नहीं गए, इन्हां गुजरां दे अंदर दा लोभ दा हलक वध गया। इन्हां आपस में दोवां गल कीती, ओ सोना ते मिल ही गया, गुरु गोबिंद सिंह डरे हुए ने, ताइयों सानू माला दे गए, आपां घेर लईए ते सरहंद पकड़ा के फिर इनाम भी सरहंद तो लवांगे, नाले सानू नवाब कोलों इनाम मिलेगा। लोभ दे मारिया ने फिर भज के अग्गों घेर लिया। 10वें पातशाह नूं रोक के कहंदे रुक जाओ महाराज, इनाम ते मिल ही गया, हुण तुहानू पकड़ा के असीं सरकार कोलों भी इनाम लवांगे। डंगा मोहरे रख के गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं घेर लिया। कलगीधर पातशाह ने एक बचन कहा, ओए अल्फू ते गमू तुसीं हुण हलक गए हो, गुजरो तुहानू हलक चढ़ गया। जेड़ा हलक जाए ओनू मारन विच ही भला हुंदा है। साध संगत ये सच है, मालक घर विच कुत्ता रखदा है, रोटी दुध ते ब्रैड ओनू पाउंदा है, पर जदों कुत्ता हलक जाए ना फिर मालक नूं खुद उस कुत्ते नूं मारना पैंदा है, नहीं ते हलका कुत्ता पहलां घर दे मालकां नूं वढदा। पातशाह ने बाणी अंदर कहा, लोभ एक हलक है, लोभी बंदे दा कोई रिश्ता साक संबंध ते विश्वास नहीं। लोभी कहवे सा ना कीजै, जे का भार वसाए, अंत काल तिथै तो है, जिथे हथ ना पाए। ताइयों साहब ने कहा, हे लोभा लंपट संग सिर मोरे, अनक लहरी कालोलते, तवंत जियां बहु प्रकार अनक पहंत वो डोलते। पातशाह बोले तुसीं हलक गए हो, हुण हलकिया होया नूं मारन विच ही भला। हजूर ने एक गल बड़ी अफसोस नाल कही, मैं तुहानू मारना नहीं सी चाहुंदा, पर तुसीं मैनू मारन ते मजबूर कीता है। मैं शमशीर चमकौर दी जंग विच भी नहीं कड्डी, पर तुसीं मैनू शमशीर कड्डण ते मजबूर कीता है। दोवां गुजरां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते डंगा नाल वार कीता। कलगीधर पातशाह ने शमशीर ते रोक लिया। इक्को ही बार विच गुरु गोबिंद सिंह ने दोवें गुजर झटका के सुट दिते। जदों दोवां दे गल वड्डे गए ना, 10वें पातशाह ने दोवें एक बार विच झटका दिते। फिर उन्हां दीयां लाशां वल वेख के बड़े अफसोस नाल कहा, मैं तुहानू मारना नहीं सी चाहुंदा, पर तुसीं मैनू मारन ते मजबूर कीता है। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज उत्थों चल के फिर माछीवाड़ा साहब की धरती ते आए, जिथे रब दे भाणे नू मन के रब नाल गल करके कहा, ख्याल पातशाही 10वीं
मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, जारड़े दा सानू सत्थर चंगा पट खेड़ियां दा रहना। रब नाल गल्लां कीतियां, इत्थे बह के कहा हमरी करो हाथ दे रच्छा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिभारा। हमरे दुष्ट सबे तुम कहावो, आप हाथ दे मोहे बचावो। जदों आ पंक्ति आई ना, सुखी वसै मोरो परवारा, सुखी वसै मोरो परवारा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक बार नहीं फिर कई बार पढ़न लग गए। प्यारे दया सिंह दे हंझू निकल आए। महाराज किहड़े परिवार दी सुख मंगदा है? तेरे दो अखां दे सामने शहीद होए ने, लाशां दे कोलों लंघ के आए, दो छोटियां दा कोई पता नहीं, तेरा परिवार विछड़ गया है। 83 सालां दी बुढ़ड़ी मां दा कोई पता नहीं, परिवार किहड़े दी सुख मंगदा है? सुखी वसै मोरो परवारा। पातशाह ने प्यार नाल कहा, दया सिंह वो मेरा परिवार थोड़ी सी, मेरा परिवार तां तुसीं हो। सुखी वसै मोरो परवारा, सेवक सिख सभै करतारा। साध संगत अपने पुत्तां दी परवार नहीं, 10वें पातशाह ने सानू परिवार कहा। वो जिन्होंने परिवार कहा अज वो सिखी तो दूर चले जान, इस तो वड्डी होर की लानत हो सकती है। 10वें पातशाह अगे अरदास करियो, महाराज सानू सिखी दा दान बख्शियो। जे तुसीं कहा सुखी वसै मोरो परवारा, सेवक सिख सभै करतारा, महाराज सानू अपने सेवक ते सिख बन ते कृपा करियो। खैर इधर 10वें पातशाह माछीवाड़ों तुर पे, उधर साध संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दोवें फरजंद बाबा फतेह सिंह ते बाबा जोरावर सिंह। इतिहास ने 7 ते 9 साल की तकरीबन उम्र लिखी है। तुसीं बच्चों वाले बैठे हो, अपने दिलों झात मार के सोचो 7 सालों का किड्डा हुंदा है बच्चा, कैसे साहबजादे होणगे, कैसे हालात होणगे। इन्नी ठंड विच बुढ़ड़ी मां धन माता गुजरी अपने पोतियां नूं उंगल ला के उस सरसा नदी के कंढे कंढे तुरदी गई। साध संगत गंगू अपने घर ले गया, ਉਹਦੇ अंदर भी लोभ का हलक जाग गया। उन्हें धोखा करके साहबजादे पकड़ा दिते। हुण इत्थों दिन गिणने शुरू करियो। इतिहासकार लिखते ने, एक रात कोतवाली मोरिंडे दे अंदर भुखे रहे, अगला दिन मोरिंडे कोतवाली तो सरहंद तक भुखे रहे। शामां पईयां, थोड़े घंटियां लई सूरज निकले। सूरज डुबदियां धुंध फैलदियां देर ना लगी। गड्डे ते बिठाए साहबजादे ते मां गुजरी नूं सिपाही सरहंद ले आए। जदों सरहंद पहुंचे, दादी मां गुजरी दा झग्गा पल्ला खिच के बाबा फतेह सिंह बोले, 7 साल दे ने। दादी मां ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਵੇ ਲਾਲ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਸਰਹਿੰਦ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਸਰਹੰਦ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ, ਕਚਹਿਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਓ। आही ठंड दी रात मां गुजरी कोल किहड़ा कोई भारा कपड़ा होना है, किवें अपने पोतियां नूं ठंडी रात विच मूंह गोदी विच ढक के बैठी रही। साध संगत हुण मां गुजरी ने इस चीज की व्याख्या की है, जिहड़ी गल गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने कही सी, पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर नाह, मन बेद्या चरणहार बिन, दर्शन लगना साह। व्याख्या की पोख सुहंदा सर्व सुख, जिस बख्शे बेपरवाह। जिन्हां दे पल्ले रब दे नाम दा धन है, उन्हां नूं ठंड भी तोड़ नहीं सकती। शरीर नूं व्यापी जरूर, मूंह नूं निग मिलिया। साहबजादे सौ गए। इतिहास कहंदा सवेरे दिन चढ़िया, छेती नाल कचहरी लग गई। सूबेदार बड़ा काला पिया, गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र पकड़े गए ने, सजावां दवांगा, गुरु गोबिंद सिंह दा बदला लवांगा। जदों कचहरी लगी, सिपाहियां नूं कहा कल्ले साहबजादे लेके आओ, बुढ़ड़ी मां गुजरी नूं नहीं। जदों साहबजादियां नूं लैण आए, कहंदे ने मां गुजरी नूं जदों आके सिपाही बोले, माता तेरे पोतियां नूं कचहरी विच बुलाया। मां गुजरी अगों फिर जवाब दिता,
वे मेरे पोतियां नूं कचहरी च क्यों सद्दे, कचहरी च बुलाने मैनू लैके जाओ, कोई सवाल पूछने मेरे तो पुछो। इत्ते अनजान जे बच्चे ने, निक्के निक्के मासूम बच्चों की उम्र कचहरियां में जाण दी नहीं, इन्हां दी उम्र तरीका भुगतण दी नहीं, ये कचहरी विच की करनगे। सिपाही बोले सानू नहीं पता माता, वजीर खान दा हुक्म है, कल्ले गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र लेके आओ। तोरन लगे मां गुजरी ने अरदास की, हे गुरु तेग बहादुर साहब, तेरे पोतियां दी उम्र कचहरियां में जाण दी नहीं, तेरे पोतियां दी उम्र तरीका भुगतण दी नहीं, तरस कृपा करियो, ये सिक्खी सिदक भरोसे विच पक्के रहन, ये सिदक ना हारन, कचहरी विचों जित के आउण। मां गुजरी दी अरदास, साहिबजादियां दा मस्तक चुम्मिया, एक गल कन विच गई, पुत जांदियां कचहरी विच गज के फतेह बुलाउणी है। दोवें साहिबजादे 7 ते 9 साल दे सूबेदार दी कचहरी च गए, पैर रखदियां सार क्या वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चेहरिਆਂ उत्ते मुस्कुराहट सी। वजीर खां हैरान, कोल खलोते काजी दे हथों माला डिग गई, कहन लगा या खुदा, इन्ने छोटे छोटे बच्चे ते इन्ना बेखौफ हौसला। एक विद्वान लिखदा है, ओ दाता जांदियां भरे दरबार अंदर साहिबजादियां फतेह गजा दित्ती, सत श्री अकाल दा मार नारा तस भी काजी दे हथों छड़ा दित्ती। काजी हथों माला डिग पई, या खुदा इन्ने छोटे बच्चे ते इन्ना वड्डा हौसला। वजीर खां उच्ची उच्ची खिड़खड़ा के हस पिया, सब कोल बैठे भी हसन लग पे। किसी ने पूछा क्यों हसने, साध संगत ये वड्डे राजे लोकां ने इस तरह के बंदे रखने पैंदे ने चापलूस, जो राजा कवे वो थल्ले वाले चापलूसी करके कहन तू बिल्कुल सही कर, ओदे हसन नाल हसणगे, ओदे चुप करन नाल चुप कर जाणगे। ये दुनिया दे राजियां दे चापलूस लोग ने। बैठियां हुई रियासतां दे होर जिन्ने एहलकार सब चुप कर गए। वजीर खां हस के चुप करके फिर बोलिया, थोड़ी देर सोच के कहंदा मैं ते एवें ही राती सोचदा रहा, गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां नूं सजावां दवांगा, गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां नूं आ सजा दवांगा। ओए ते छोटे छोटे बच्चे ने, जाओ इन्हां नूं खाण ते खेडण दीयां चीजां दिओ, ये आपे ही 2 दिनां विच गुरु गोबिंद सिंह नूं भुल जाणगे, अपने आप मुसलमान हो जाणगे। कचहरी विचों भेज दिते, सब बंदे सूबेदार दे मगर हसदे रहे। साहिबजादियां नूं खाण ते खेडण दीयां चीजां दित्तियां गईयां। इतिहासकार लिखदे ने, एक भी चीज नूं खाण वास्ते साहिबजादियां चुक्या नहीं। पता क्यों? भुख तां सी, क्योंकि मरिंडे दी पहली रात कोतवाली विच भुखे, दिन पूरा सरहंद तक आउंदियां भुखे, रात पूरी ठंडे बुरज विच भुखे। अज तीजा दिन है, पेट विच एक भी अन्न दा दाना नहीं, फिर भी साहिबजादियां कोई चीज ना चुकी। क्यों? आपस विच कहंदे ने असीं किवें खा लईए, ठंडे बुरज विच साडी दादी भुखी बैठी है। दोवां साहिबजादियां कुछ ना छकिया। सिपाही खिडौणे विखाउण लगे, कहते ने किसे खेडण वाली चीज वाल मन ना गया। अचानक 2 खिडौने नजर पे ते चुक ले साहिबजादियां। एक लकड़ दी तलवार चुक के कमर कसे विच दे लई, एक ने तीर कमान चुक लिया। बाबा फतेह सिंह तीर छड्डदे ने, बाबा जोरावर सिंह चुक के लिआंदे ने। एक दूजे नाल खेडण लग पे। कचहरी दा घड़ियाल वजिया, सिपाहियां नूं कहा साहिबजादियां नूं पेश किया जाए। वजीर खान ने फिर कचहरी ला ली। सजी कचहरी विच फिर कहंदा है इन्हां कुछ खाधा है? सिपाही बोले जी कुछ नहीं खाधा। खिडौने कोई ले? सिपाहियां कहा जी आ खिडौने चुके ने, लकड़ दियां तलवारां ते तीर कमान। वजीर खान हस के मुखौल करके बोले, ओए बच्चेओ, ये लकड़ दियां नन्नियां नन्नियां तलवारां करपानां ते तीरां नाल की करोगे? बाबा जोरावर सिंह गज के तिखी आवाज बोले, वजीर खान हम गुरु गोबिंद के फर्जंद हैं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे पुत्र। एक बार छड़ के वेख, जे अपनी आई ते आ गए लकड़ दी तलवार नाल भी तेरा सिर वड़ देंगे। वजीर खान दा एकदम चेहरा कंब गया।
उन्हें कहा बड़े गुस्ताख बच्चे ने, मेरी नज़र तो दूर ले जाओ, ठंडे बुरज विच भुखे रखो, कल वेखांगे इन्हां दी अकल। जदों दबका मार कचहरी चों तोरन लगा, कहंदे दोवें साहिबजादे कचहरीओं बाहर निकलण लगे। वजीर खां किन्ना डर गया होएगा, इन्हें पिछों आवाज मार के कहा सिपाहियां नूं रुक जाओ। सिपाही रुक गए। सिपाहियां नूं कहंदे साहिबजादियां कोलों लक्कड़ दीयां तलवारां ते तीर कमान वापस लै लो। क्यों? ये डर गया किते ये सच ना हो जाए, गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र ने लक्कड़ दी तलवार नाल भी सिर किवें वड़ सकदे। साध संगत, डरिया होया बंदा भै खांदा है, फिर सच तो हमेशा ही झूठ डरदा है। झूठ किन्ना भी बलवान होवे, साध संगत ते सच है, जेदे पल्ले सच होवे, वड्डे वड्डे शस्त्रधारी बंदे उहदे सामने अखां नीवियां कर लैंदे ने। ये सच दी बड़ी वड्डी ताकत है। खैर, दोवें साहिबजादे मां गुजरी को वापस चले गए। पूरा हाल मां गुजरी ने पूछे। इतिहास कहंदा 3 दिन कचहरी लगदी रही, 3 दिन डरावे दिंदे रहे, 3 दिन साहिबजादियां नूं डरा डरा के ईन मनाउण दी कोशिश की। जिदन ना मन्ने, वजीर खान ने कहा अज ते हद हो गई, इन्ना लंबा समा इन्ने छोटे बच्चों नूं रखिया नहीं जा सकता। काजी साहब फतवा सुनाओ, इन्हां दी अलख मुका दिओ। इतिहास कहंदा है, मैं विचों विचों बेनती कर रहा, समा घट है साध संगत। जदों फिर दोवां साहिबजादियां नूं आखिरी दिन कचहरी सी, अज साध संगत मां गुजरी ने तोरन लगे अरदास नहीं की। अज मस्तक चुम्या, दुमाले सजाए, जपजी साहब सुनाया, तोरन लगे अरदास ना की। दोवें साहिबजादे बुरज दियां पौड़ियां उतरे ते एक कदम रोक के बाबा फतेह सिंह ने कहा दादी मां अज तू कुछ भुल गई है। वे पुत मैं की भुल गई? दादी मां अज तू अरदास नहीं की, 3 दिन अरदास करती रही है, मेरे पोते जित के वापस आउण, मेरे पोते जित के वापस आउण। अज दादे दे चरनां च अरदास क्यों नहीं? मां गुजरी ने एक गल कही मन भर के, वे मेरे लाल अज पता क्यों नहीं अरदास की? 3 दिन मैं मंगदी रही, मेरे पोते जित के वापस आउण। अज मेरा मन कहंदा है तुसीं कचहरी चों वापस मेरे कोल नहीं, सिद्धा दादे दी गोद विच चलिया जाना। क्यों? मां गुजरी दी अखां दे सामने इट्टां सुट्टियां जा रही सन, बिल्कुल ठंडे बुरज दे सामने गारा बनाया जा रहा सी। ये सारी प्रक्रिया सवेरे शुरू हो गई सी। कदे तुसी ठंडे बुरज दर्शन करियो, सरहंद जाके फतेहगढ़ साहब दर्शन करियो, ठंडे बुरज तो सामने शहीदी स्थान दिसदा है। ये सवेरे दिन चढ़दे प्रक्रिया शुरू हो गई सी। इट्टां सुट्टणियां गारा बनाउणा पहले शुरू कर दिता। ये ते तय हो चुका सी कि अज ईन नहीं मन्नी ते दोवां साहिबजादियां नूं कंधां च चिण दिता जाएगा। उच्ची फसील उत्ते वजीर खान बैठ गया, नाल उहदे अहलकार रियासतां दे लोग बह गए। तमाशबीन लोकां नूं ढंडोरा पिट के सरहंद तो सद्दिया गया। क्यों? कल तो कोई इन्ना हौसला ना करे कि मुगलिया हुकूमत दा विरोध कर सके। गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां नूं इदां दी सजा देणी, लोकां नूं डराउण लई इकट्ठियां कीता। इतिहास कहंदा है दोवां साहिबजादियां नूं ओ जगह ते लिआंदा जिथे अज साध संगत वो शहीदी अस्थान कंधां वाला अस्थान है। सामने मां गुजरी वेखदी है, खब्बे हथ उच्ची फसील ते वजीर खान बैठा है। काजी ने फतवा सुना दिता, 2 जलाद शाशल वेग ते बाशल वेग दोवां ने कंधां चढ़नियां शुरू कर दी। दोवां पासों कंधां चढ़दे गए। हुण बरीक इट दी कंध सी, वक्त लगना सी। सवेर तो चिणदियां चिणदियां दोपहर हो गई। साहिबजादे पैरों तो लैके गोडियां, लक, पेट, छाती तक कंधां आउंदियां गईयां। पंजाबी दा एक प्रसिद्ध विद्वान ज्ञानी चरण सिंह सफरी लिखदा है, वो कहंदा श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे लाल मां गुजरी वल वेख के मुस्कुरा रहे सन। चेहरा सीधा मां गुजरी वल कीता है। पता क्यों? किते दादी दा दिल डोल जाए, एक बार कंब के कह दे वे रुक जाओ, असी धर्म छड़ दिन्ने, मेरे पुत्रे छड़ दिओ।
ਪਰ ਧੰਨ ਸੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਲ। ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਕੰਧਾਂ ਚਿਣਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਲਾਦ ਗਾਰੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਜ ਨਾ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਲਾਦ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬਿਆ। ਇੱਟਾਂ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਾਦੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦਾ, ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਧਰਮ ਛੱਡਿਆ ਤੇਰੇ ਪੋਤੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਲਾਦ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ ਇੱਕ ਗਿਆ ਜਲਾਦ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਬੈਠ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅੰਮੀਏ ਨੀ, ਤੇਰੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਗਰੈਣ ਲੱਗਾ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਲਾਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਬੇਟਾ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰੇ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਆਸਰਾ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਢਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਬੇਟਾ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖ ਕਿਸਮਤ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੈਂ, ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਵੇਖ ਇੱਟਾਂ ਚ ਲਪੇਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਧਾਂ ਗਲੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਕਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦੇ ਧਰਮ ਛੱਡਿਆ ਤੇਰੇ ਪੋਤੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਲਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ 2 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੱਦ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੁਕਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਰਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਭੱਜ ਗਾਰੇ ਦੇ ਫੇਰ ਜਲਾਦ ਭੱਜਾ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰੀ ਤਾਈ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਜਰਦੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾਰੀਆਂ ਗੁਜਰ ਗਈਆਂ, ਗਿਆ ਗੁਜਰਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆਖਦਾ ਏ, ਗੁਜਰੀ ਉੱਤੇ ਕਹਾਰੀਆਂ ਗੁਜਰ ਗਈਆਂ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਵੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਲਿਆਉਣ ਖਾਤਰ। ਆ ਗੱਲਾਂ ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਪਵਾਂ, ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਦਿਲ ਡੋਲ ਜਾਏ। ਵੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਲਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਲਿਆਇਆ ਏ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਵੇ ਜਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਦਵਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਜਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇ। ਵੇ ਘਿਣਿਆ ਕਾਤੋਂ ਤੂੰ ਘਿਣੀ ਜਾਨੇ, ਕੰਧ ਮਿਣੀ ਜਾਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਫਨ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਿਣੀ ਜਾਨੇ। ਇਹ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਫਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਣਾ, ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਜਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਜਲਾਦ ਮੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਤ ਗਿਆ ਜਲਾਦ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਖੂਨੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।
आखिरी बार अखां नाल दादी वल वेख्या, दादी ने पोते वल वेख्या, कैसा हालात होएगा। साध संगत वो विद्वान लिखदा, परत गया जलाद फिर दुखी हो के, खूनी कंध उत्ते इट्टां लाउण लगा, ओ अंबर विच कहारी दे शेक पै गए, ते सीना पृथ्वी दा थर थराउण लगा। मां गुजरी ने फिर बड़े हौसले नाल बोलिया, वे मेरा ना गुजरी, मेरी अल गुजरी, एहो जी कहारी दा मेरे उत्ते, घड़ी घड़ी गुजरी पल पल गुजरी। पहला पति दिता फिर मैं पोते तोरे, आ हुण मौत मैनू कहंदी है चल गुजरी। लोकी गुजरी मैनू ताइयों आखदे ने, जिहड़ी आई सिर ते ओ मैं चल गुजरी। दोवें साहिबजादे कंधां विच लुक गए, सब खामोश हो गए, सब दे साह रुक गए। साध संगत एक टक दुनिया वेख रही सी, सरहंद सुन पै गया। कुछ मिनटां बाद अचानक कंधां डिग पईयां, दोवें साहिबजादे कंधां दीयां इट्टां दे थल्ले आ गए। उच्ची फसील ते बैठा वजीर खां बोलिया, ओए जलादो वेखो मर गए ने। दोए जलाद साहिबजादियां नूं जाके वेखण लगे, नवजां पकड़ के वेख्या, आवाज दे के कहा, वजीर खान जी मरे नहीं, मुरशद हो गए ने, साह हुट्टण नाल बेहोश पै गए ने। वजीर खान ने उच्ची फसील तो कहा, इन्हां दियां साह वालियां रगां वड़ दिओ। दोवां जलादां ने खंजर कड्डे, दोवां साहिबजादियां दे गल तो साह वालियां रगां वड़ दित्तियां। शहादत दा जाम पी गए, असह कष्ट सहारदियां मां गुजरी शहीद हो गए। साध संगत अज जो धरती है जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे लाल शहीद होए, जिदन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं खबर मिली ना, ये महाराज तेरे पोतरे हैं, पोते शहीद होए, तेरे पुत्रां नाल आ कुछ होया। दादी ने पोतियां नूं अखां नाल शहीद होंदियां वेख्या, तेरे पुत्तां दियां साह वालियां रगां वड़ दित्तियां, तेरे पुत्तां नूं कंधां विच चिणिया। सारी खबर सुनी, पातशाह ने बैठिया बैठिया काई दा बूटा पुट के तीर दी नोक नाल कहा, हुण तुरक राज दी जड़ पट्टी गई, हुण तुरकां दियां जड़ां पट्टियां गईयां। साध संगत पातशाह ने एक गल मुस्कुरा के कही, प्यारे दया सिंह अज मेरी सब तो वड्डी फतेह हुई है। कहंदे महाराज हर जंग में तुहाडी फतेह हुई है, अज क्यों? पातशाह कहंदे अज सब तो वड्डी फतेह हुई है। वो दुश्मन ने जोर ला लिया, मेरा 7 साल दा फतेह सिंह भी डुला नहीं सके, मेरे 9 साल दे जोरावर सिंह नूं ईन नहीं मना सके। अज मेरी सब तो वड्डी फतेह हुई है। साध संगत तां वो अस्थान दा नाम गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब है। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे लखते जिगर फरजंद जिन्हां दी गाथा तुसीं सुनी है, तुहानूं बेनती है साध संगत ये दिन मनाउण दा ताइयों लाभ है जे आपां अपने पुत्रां धीआं नूं अंमृत छकाईए, बाणी नाल जोड़ीए। सिੱਖੀ मंग के लैनी पैंदी है, प्यो दादियां दी जायदाद पोतियां नूं मिल जांदी, इन्नी जमीन दादा छड्ड गया, पर सज्जणों सिੱਖੀ आपो अपनी गुरु कोलों मंग के लैनी पैंदी। बख्शो सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान ये गुरु कोलों मंगना पैंदा। अपने बच्चों वास्ते सिੱਖੀ मंगो, दिलों दे विचों ईरखा छड्ड दो, किसी नाल ईरखा ना करो। साध संगत बाहर कीती ईरखा कई बार चल जाती है, जिहड़ा गुरु दे दर उत्ते ईरखा करे वो कित्थों बख्शिया जाता है। सतगुरु कृपा करन, मनां विच ईरखा ना रखिए, अमृत छको, बाणी पढ़ो, गुरु दे सिख सजो, पुत्र धीआं बनो। जिन्हां बीबियां भैणां ने अमृत छकिया उन्हां नूं बेनती है भाई केसकियां दमाले जरूर सजाओ। गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र धीआं दूरों नज़र आने चाहिए ने। और गुरु गोबिंद सिंह दी लाडली धी जा रही है, आ गुरु गोबिंद सिंह जी दा पुत्र जा रहा है। इसलिए भैणां नूं बच्चियां नूं बेनती है जिन्हां अमृत छकिया वो दमाले केसकियां जरूर सजाओ। बाकी संगत नूं बेनती हत्थ विच कड़ा जरूर पाओ भाई, जिन्हां ने हत्थां 'च कड़े नहीं ना पाए वो वहमां भरमां दे शिकार हुंदे, फिर वो काले धागे बन्नण लग पैंदे। आ नवां ट्रेंड चलिया, पैरां विच भी काले धागे,
हत्थां ते भी काले धागे। परसों मेरा यूपी दीवान सी तो एको परिवार वाले बीबी सेवा बड़ी करे, हत्थ ते धागा बन्निया। मैं कहा काहदे वास्ते बन्निया? कहनी भाई साहब जी कहते इन्ना धरन हट जाती है। हद हो गई गल वाली। मैं उन्होंने कहा गुरु का भरोसा रख, जा कलगीधर पातशाह का कड़ा पहने कड़े ते भरोसा रख ले। साध संगत तो बड़ी दलेर बीबी निकली। उन्हें उस वक्त लंगर विचों करद मंगाई, वड्ढता अपने हथ का धागा। गुरु ते भरोसा रखो, धागियां दे वहमां भरमां च ना पाओ, कड़ा पहनो, अमृत छको, बाणी पढ़ो, फिर ये जीवन जन्म सफल है। ये नौजवानों तो मेरा मन बड़ा खुश है, दूर दूर तक सेवा करन जाते हैं, तुहाडे नगर का नाम रोशना रहे ने। साध संगत दुनिया दुखी है अपनी औलाद तो, पता नहीं 10 बजे 12 बजे कित्थों आउण, नशे करदे की हुंदा है। तुहानूं माण होना चाहिए ना बच्चों ते, राती 1-1 2-2 बजे आउंदे ने जोड़ियां दी सेवा करके। दीवान 12 बजे समाप्त होंदा है, सारी समाप्ति करके एक भी जोड़ा जोड़े घर च रह जाए, जिम्मेवारी वेखो कितनी वड्डी है। वो जोड़ा छड्ड के नहीं जा सकते जब तक वो जोड़ा नहीं लगे। 1:30 2-2 बजे ये तुहाडे पुत्र मुड़दे ने। इन्हां नौजवानों नूं शाबाश दिओ। शुभ करमन सेवा संस्था ये नौजवान तकड़े होकर सेवा करन, आशीर्वाद दिओ। जे होर नहीं ना कुछ कर सकते, तुहाडा बहुत वड्डा पुण्य है। जे कोई इन्ना ही कह दे वाह वे वाह शाबाश, तकड़े होके करो, कोलों कुछ भी ना दिओ, किसी नूं वाह वाह करके शाबाश देनी धर्म के रस्ते उत्ते बहुत वड्डा पुण्य है। सतगुरु कृपा करन, इन्हां नौजवानों की सेवा प्रवान होवे, नगर नूं एकता इतफाक बख्शण। एक पंक्ति हुण सारे पढ़िओ गज के, हाजरी तो हुण तुहाडी लवाउणी है। बह जाओ भैणो, 1 मिनट बह जाओ, हाजरी तो तुहाडी लवाउणी, हुण गज के एक बार सारे प्यार नाल कहो। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, धन श्री गुरु तारे ऐसे गुर का आप मुकत, ऐसे गुर को आप मुकत मोहे तारे। सतगुरु कृपा करन, तुहाडी सारियां दी हाजरी दरगाही प्रवान होवे। ये सारा ही प्रोग्राम मेरे बड़े सत्कारयोग वीर कुपर हीड़े शहीदां दी धरती तो खालसा जी टीवी जो यूट्यूब का चैनल है वो लाइव कर रहे ने, और साध संगत देशों विदेशों तक संगतां तक के तुहाडे नगर का समागम पहुँचाया जाना है। वे देखो इन्नी ठंड वे 10 बजे तक किवें छोटे वड्डे बच्चों ने बह के बड़े आनंद दे नाल गुरु दीयां खुशियां प्राप्त कीतियां ने। गुरु दे लखते जिगर फरजंदां दी सिफत वड्याई कीती है। सो ये वीर सत्कारयोग खालसा जी टीवी चैनल जो यूट्यूब का चैनल है, इन्हां दा धन्नवाद साडे इलाके विच करदे रहिंदे ने प्रचार। गुरमुख टीवी तो भी ये सारा ही प्रोग्राम कल तो इंटरनेट उत्ते लाइव होना। सतगुरु कृपा करन, आपां दूर दरेडे बैठे ये रिकॉर्डिंग इन्हां लाइव का ये भाव है, फायदा बहुत है। जिहड़ियां नौजवान विदेश में जिहड़े नौजवान बैठे अपने नगर दे होर साध संगत तो लाहे लेते, दूर दरेडे बैठ के घर बैठे उन्हां तक के सारा प्रोग्राम पहुँच जाता है। सो खालसा जी टीवी भी और गुरमुख टीवी ये दोवें यूट्यूब के चैनल सबसक्राइब करो। ये लिंक जिहड़ा दूर दूर तक भेजो तां जो सारे जने तुहाडे जिन्ने लिंक विच हन वो सुन के लाहे प्राप्त करन। अगला प्रोग्राम सत्कारयोग ज्ञानी गंधारा सिंह जी उन्हां तो सरवण करो। कोटान कोट शुकर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का असीसां बख्शिओ। पहला जदों मैं सुनिया ना वे कंगना बेट प्रोग्राम, मैं कहा भी उत्थे बेट वे संगत जुड़ जाऊगी उत्थे वो इलाके विच, तो मैं कई दिन इन्हां विचारियां नूं समा ना दिता क्योंकि शेड्यूल बहुत विजी चल रहा। रात ही असी यूपी तो आए, सवेरे 3 बजे पहुँचे। कल सवेर का फिर दीवान 11 बजे का ग्रीन एवेन्यू जो रोपड़ है उत्थे कलोनी में समागम है। तो इन्होंने बहुत मेहनत की, तुसी संगत प्यार नाल बह के सुनिया।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਮਿਲਾਓ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।